یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. یہ صورتحال ہے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہے. یہ پولیس جو ہے وہ آگے کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ، کیونکہ آج لیڈیز پولیس نہیں ہے تو مردوں کی پولیس جو ہے وہ سامنے اس ٹائم کھڑی ہوئی ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم صورتحال. آج ایس ایچ او اعزاز جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور آپ پلیز ذرا چیک کریں. اس ٹائم علیمہ خان صاحبہ ایس ایچ او سے کہہ رہی ہیں کہ آپ بات کریں. اور لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہے. پیچھے سے صحیح نا پولیس کو وہ بھی پیچھے بیٹا دھکا نہیں لگانا، چھوٹے آرام سے کھڑے ہو. اس ٹائم شاید خٹک جو ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ایم پی اے تنویر اسلم، سمابیہ طاہر سارے یہاں پہ موجود ہیں اور اعزاز سے بات ہو رہی ہے کہ ہمیں جانے کی اجازت دیں. زندہ ہے، 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 زندہ ہے. اس ٹائم علیمہ خان صاحب بات کر رہی ہیں. زندہ ہے. میڈم علیمہ، آپ سے ایک شارٹ کویسچن ہے میرا. بیٹا دھکے نہیں لگا رہے ادھر سے لگے. علیمہ صاحبہ یہ بتائیں کہ خان صاحب آپ کے اکلوتے بھائی ہیں، پیارے بھائی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو آج کل جو ہیڈ لائنز چل رہی ہے جس طرح بشرا بی بی کے حوالے سے، جادو ٹونے کے حوالے سے، تو کیا یہ حقیقت آپ کو معلوم تھی؟ اور اگر معلوم تھی تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنی مرضی شیطانیاں کر لیں، آرٹیکل نکلوا لیں، ہاں یہ آپ اس قسم کی باتیں یہ کیوں کرواتے ہیں؟ نہ بشرا بی بی کی عزت میں کوئی کمی آنی ہے، نہ عمران خان کو کچھ ہونا ہے. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے جو اس وقت لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل گئے ہیں جا کر. جب اسرائیل کے ساتھ جس دن مل رہے تھے تو اس کی ہیڈ لائنز آپ نے ٹی وی پہ بنا دی، کیونکہ آپ کے لیے بریکنگ نیوز صدمے والی ہونی چاہیے. اس وقت اسرائیل کے لیے آپ کس قسم کے پاکستانی ہیں؟ مسلمانوں کو بیچ دیا، مسلمانوں کو جہاں غازہ، میری بات سنیں، غازہ جس کے لیے لاکھوں انگریز غازہ کے لیے نکل آئے، غزہ کے لیے، اور دنیا نکل آئی. آنسو جنہوں 40-50 ہزار لوگ جو وہاں پہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، ان کے لیے آپ کوئی دنیا روئی ہے. آپ نے اپنے ان سے اگریمنٹ کر لیا جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ وہاں پاکستانی فوجی بھیجے جائیں گے. ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے بھی یہی پڑھا جیسے آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے پڑھی ہیں چیزیں وہ ہم نے بھی پڑھی ہیں. فوجی بھیجے جائیں گے حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے، جس کا مطلب آپ مسلمانوں پہ انہی پہ جا کر آپ اسرائیل کی جگہ ہم جا کے گولیاں چلائیں گے. یہ یاد رکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو اس کی ہر پاکستانی کو شرمندگی اتنی ہونی چاہیے کہ اپنا سر جھکا لینا چاہیے. مسلمان بیچ رہی ہے آپ. راجہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں پارلیمنٹ میں جو ہے وہ جو ہے لعنت بیچتا ہوں اور جنہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی. آپ میرے سے وہ سوال جس کا آپ نے پوچھا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا. اچھا. اور اس لیے آپ کو غزہ کی فکر کرنی چاہیے. ساری دنیا کے مسلمانوں کے آگے آپ شرمندہ ہوئیں گے، ہم شرمندہ ہوئیں گے. وہ سوال ہم کسی اور سے کریں گے میڈم، آپ تو یہ بتا دینا. میں نے آپ کو بتا دیا وجہ یہی ہے نا، بی بی کلاس لے کے پھرتی تھی تو تب نہیں پتا چلتا تھا کہ جادو ٹونا کیا ہے. آپ سے کون بات کر رہا ہے؟ آپ پریویس سے اعزاز نے کی ملاقات کروائیں گے، اس لیے تو ہم اٹھے تھے. پہلے دن سے کمٹمنٹ دیتے اور آج کریں گے، آج کریں گے انشاءاللہ.
मोबाइल में लगा हुआ है। ये इस टाइम आप लोगों को दिखा रहे हैं। प्रीवियस जब आप जा रही थी गाड़ी में बैठी तो आपने कमिटमेंट की कि मैं नेक्स्ट जैसे ही आप लोग आएंगे तो आप लोगों की मुलाकात होगी। आपने इसी कमिटमेंट के ऊपर हमें कहा था आप यस यस, ये तो कमिटमेंट मैं के ऊपर हम कमिट कर रहा हूँ और सारे गवाह हैं कि आपने कहा था अगली दफा मैं कमिट कर रहा हूँ कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। यस, कहा था ऐसे ही था। हम तो रोड से भी इधर से उधर नहीं हो रहे थे। अभी 3:15 हो गए हैं, 2 बजे का टाइम होता है। ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पुलिस के साथ गुफ्तो शनीद जो है वो जारी है। सामने बिल्कुल SHO साहब खड़े हैं और अलीमा खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप हमें बता दें, मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके पास इससे बेहतर कोई तजवीज़ है तो आप दे दें, हम वो कर लेंगे। आप सिर्फ हमें ये बता दें कि हम इंसाफ के लिए किधर जाएं। आप हमें बता दें। लोग समझते हैं ये सियासत है, आप इसको सियासत कहते हैं। एक बेगुनाह इंसान को आपने जेल में कैद में किया हुआ है, हम उसके सारे हक़ाइक़ उसको उसके सारे जो राइट्स हैं वो ले लिए। ये जो ह्यूमन राइट्स उसके जो हैं कानून, उसके खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। सारे कानून तो हुकूमत तोड़ रही है, तो हमने क्या किया जुर्म? पहले ये बता दें। हम सिर्फ उसके लिए बैठे हैं और क्या करें? आप अगर आपके पास कोई और तजवीज़ है आप हमें बताएं, हम वो कर लेंगे। कोर्ट में डेट अनाउंस करके वापस ले लेती है कोर्ट में ना। हमें पता है ना आपका अदालतों का तो यही हिसाब अलीमा है। आपा, इन्होंने ताहयात इस्तिस्ना ले ली है, जिसमें हम लोग इस्लाम में भी देखते हैं कि किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम नबीय्यीन भी कहते थे कि अगर मेरी बेटी जो है फातिमा अगर चोरी करे तो उसके भी हाथ काट दो। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ताहयात इस्तिस्ना कैसे लिया जा सकता है? आपका ख्याल है जो सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है वो आपके इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ एक चीज़ जो ख़त्म की जा रही है वो आपका इस्लामी है। एक पाकिस्तान बड़ा कीमती मुल्क है, जो जब पाकिस्तान बना था तो ये मुसलमानों के लिए बना था। दुनिया में 2 मुल्क बने हैं, एक इज़राइल और एक पाकिस्तान। वो यहूदियों की पनाहगाह थी और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए पनाहगाह थी। किसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? मुसलमानों की इस्लाम का कहते हैं, जो कहते हैं ना ये हब है, ये पाकिस्तान सारी दुनिया, पाकिस्तान सारी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान को देखती थी। तो आप अगर ये चीज़ होने दे रहे हैं और इसको कानून के नीचे लेकर आ रहे हैं कि जी हम कानूनी तरीके से कर रहे हैं और जमहूरी तरीके से कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानी जो 250 मिलियन पाकिस्तान में लोग हैं, फिर आप अपने सामने अपना जो सारा वो जो कहते हैं ना जो पाकिस्तान जिस वजह से बना था वो अपने सामने ख़त्म होता देख रहे हैं। आपके सामने रोज़ बरोज़ ये चीज़ें होंगी, फिर आप रोज़ किससे सवाल पूछ रहे हैं? मेरे से। मैं तो एक इंसान हूँ। आप ये सवाल अपने से पूछें कि हमारे मुल्क के साथ, आप पूछें कि हमारे मुल्क के साथ, हमारे दीन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप अपने से सवाल पूछें। मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, यहाँ 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उसके लिए तो मैं जवाब नहीं ना दे सकती। मैम, पाकिस्तान की आवाम को निकलना चाहिए, हम बार बार ये आवाज़ सुनते हैं, लेकिन 2 मैसेकर हुए, एक 26 नवंबर है मरीज के। इस सब के बाद आवाम डरी हुई है, खौफजदा है। आपको लगता है कि इस चीज़ को तोड़ने के लिए कोई अमल करना चाहिए? आवाम के अंदर जो अमल लेके आना चाहिए? अभी सुप्रीम कोर्ट में लोग नहीं डरे हुए, मैंने नहीं देखे कि लोग डरे हुए। मैंने तो किसी को नहीं देखा डरे हुए। लोग नहीं डरे हुए, कहाँ डरे हुए? वो जुल्म इतनी देर से देख रहे हैं, डर खत्म हो जाता है जब इतना जुल्म देख लें तो। डर नहीं है किसी को। खादिम हुसैन रिजवी के दोनों बेटे लापता हैं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग रहा कि वो कहाँ पे है, साद रिजवी और उनके दूसरे भाई। तो फिर उसके बाद मौलाना ने एहतिजाज की कॉल दी थी, मौलाना फजल रहमान ने फैसल वाडा उनके पास गया, अगर आप आओगे तो मार पड़ेगी। मौलाना भी पीछे बैठ गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खबरें आ रही हैं कि 24 या 26 नवंबर तक का कॉल दे दी जाएगी एहतिजाज की। तो मैडम, अगर दोबारा कॉल दे दी जाती है और फिर उस तरह जैसे डी चौक में हुआ वही होता है, तो उसके बाद फिर क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा।
आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? हम तो यहाँ आके बैठ जाते हैं। हर पाकिस्तानी को अपना जवाब खुद देना है। आप अपना जवाब, इन चीज़ों का जवाब आपके पास है, हमारे पास नहीं है। हम तो अपने भाई के लिए बैठे हैं जिसको नाहक कैद में डाला हुआ है। हम तो बैठ जाते हैं आके, हम तो उनकी फैमिली, हम बैठेंगे। आप मेरे से वो सवाल कर रहे हैं जो सवाल आपको अपने से करने चाहिए। क्या आप लोगों की क्या ड्यूटी अपने मुल्क के लिए? सिर्फ इमरान खान ने तो ठेका नहीं उठाया मुल्क का, हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क का ठेका उठाना चाहिए। अभी आप यहाँ पे बैठ गई हैं, पुलिस वालों ने आपको क्या कहा है, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? जो वही कहा है जो हर दफा कहते हैं कि अभी हम पता करके बताते हैं। आज नहीं कराई जाती मुलाकात, कुछ फिर भी आप नहीं। बैठे रहेंगे यहाँ पे? नजर आता जब भी हम आप बैठेंगे, अगर वारंट होता है, बैठने देंगे तो हम बैठे रहेंगे। आपकी आंखों में खौफ क्यों नहीं नजर आता जब भी आपको बताते हैं कि वारंट गिरफ्तारी है या आपको गिरफ्तारी की बातें करते हैं ये लोग? बेटा किस चीज़ का खौफ होना चाहिए पहले ये बता दो। क्या मुझे खौफ है? जेल जाने का खौफ होना चाहिए। हम जेल हुआ हैं, फिर डाल दें। लेकिन जहाँ हमारा भाई 2.5 साल जेल बैठ सकता है ना छोटे से सेल के अंदर, तो हमें क्या, हमें किस चीज़ का, हमें क्यों डर लगना चाहिए? कोई जुर्म के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना। ये नाजायज़ काम कर रहे हैं, गुनाह तो ये अपने सर ले रहे हैं। हम ये अगर एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, अगर उसके लिए जेल भी जाना पड़े और अगर मौत भी आए, आपको पहले कबूल करनी पड़ेगी। ये फैसला करके घर से निकले। हमें इस चीज़ का हमने फैसला किया हुआ है, तो किस चीज़ का डर लगना है? अलीमा खान साहब, बाहर वाले जो ममालिक हैं उनमें भी अब पीटीआई जो है वो बड़े बड़े पावर शो कर रही है, तो लेकिन उसके बावजूद भी, इंटरनेशनल वॉइसेस के बावजूद भी इमरान खान से आप लोगों से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? क्योंकि कहते हैं प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर ही काम करता है हमेशा। तो लेकिन क्यों? आप लोगों की मेरी बात सुने, क्यों आप कह रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर? 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, आप बाहर से क्यों इंतजार करते हैं आके कोई करेगा? आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। मैडम, बाहर जो पाकिस्तानी थे, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ये कह रहे थे कि हम पे तनकीद की जा रही है कि आप सोशल मीडिया पे ही बातें करते हैं। इसी सूरत में हमने 2 दिन पहले बार्सिलोना में बहुत बड़ा पावर शो देखा। देखने में ऐसे लग रहा था कि वो इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे पाकिस्तानी आए थे, तो क्या आप उनकी हिमायत करेंगी जिसके के लिए वो देखिए लोग मेरी निकले बात थे? सुने, अलादीन नाम आप 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, फिक्र तो हमें अपनी करनी चाहिए। बेचारे बाहर जो आपके लिए इतनी हिम्मत कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपने मुल्क की कीमत का पता है कि बड़ा कीमती मुल्क है। जब मुल्क छोड़ के जाओ ना, बाहर जाते हैं, वो फिर अपने मुल्क के लिए रोते हैं, क्योंकि उनको तब समझ आती है कि जो मर्जी पैसे कमा लो, अपना मुल्क है, बड़ा कीमती मुल्क है। तो वो उनको ये दुख होता है कि जो 25 करोड़ हम यहाँ बैठे हैं, पहले हम तो इसकी कदर करें। तो इसलिए हमें सबसे पहले खुद अपने मुल्क की इसकी हिफाजत करें, इसको बचाएं। इमरान खान कहते हैं अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हों और अपने मुल्क को बचाएं। थैंक यू मैडम। बहुत शुक्रिया।